children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Light. Introduction. Light is a form of energy. It makes different objects visible to us. If there is no light, we cannot see at all. Light is produced whenever an object gets extremely hot. It is something without which life is not possible on Earth. For instance, if we heat a poker in fire, it first gets red hot and gives off a feeble and red light. Then it glows white hot. Before we begin to study more about light, let us revise what we have already learned in the previous class. Number 1, light travels in a straight line. Number 2, a shadow is produced when the path of light is obstructed by an opaque object. Number 3, when you stand in front of a mirror, you see your image. Number 4, light travels faster in the universe. लाइट आपको पता है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसकी वजह से हमें डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती है. अगर लाइट नहीं होती तो क्या हम इन सारी चीज़ों को देख पाते? बिल्कुल भी नहीं. तो देखिए लाइट जो है आपकी प्रोड्यूस कब होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है. तो इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हम वो चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. जैसे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. शेडो कब बनता है? जब लाइट का जो पाथ होता है ना उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. और ऑब्स्ट्रक्ट कौन करता है? ओपेक ऑब्जेक्ट. जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी इमेज नजर आती है और जो लाइट है यूनिवर्स में वो फास्टर ट्रैवल करती है. 12.1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स. Light travels in a straight line. You know that very well, right? Ray of light is the amount of light traveling along a straight line. Beam is a collection of rays of light. Beams are of three kinds: parallel beam, convergent beam and divergent beam. अच्छा देखिए जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है? अमाउंट ऑफ लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है. और जो बीम होता है वो कलेक्शन होता है रेज ऑफ लाइट्स का. तो बीम्स आपकी 3 तरह की होती है: पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम. Pinhole camera is based on the rectilinear propagation of light. Due to this propagation, an inverted image is formed of the object. अब pinhole camera जो है वो आपके rectilinear propagation of light पे based है, right? और इस propagation की वजह से एक inverted image जो है ऑब्जेक्ट की बनती है. inverted यानी कि upside down, right? Speed of light is about 300,000 km per second. The denser the medium, slower it travels. Shadows are formed when light is obstructed by an object. The shadow is formed behind the opaque object where light cannot reach. लाइट की स्पीड देखिए कितनी ज़्यादा है ना? जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा उतना ही स्लो लाइट ट्रैवल करेगी. शेडोज़ आपके बनते हैं जब लाइट का जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. और शेडो जो है हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है जहाँ पे लाइट पहुँच नहीं सकती. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Imagine you are warming up for a game of tennis by hitting the ball against a blackboard or a smooth wall. Each time you swing, the ball hits the wall and bounces back. Light behaves in a much similar way as the tennis ball. When light strikes a surface, whether smooth or rough, it bounces back. The bouncing back of light is called reflection. The surface through which light cannot pass but bounces back into the same medium from which it has come are called a reflecting surface. देखिए इमेजिन कीजिए आपका टेनिस का मैच है. आप अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं. वार्म अप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि जो बॉल है ना उसको आप हिट कर रहे हैं अगेंस्ट अ ब्लैक बोर्ड या कोई स्मूथ बॉल. हर टाइम आप क्या करेंगे? जब आप इसे स्ट्राइक करेंगे तो बॉल वापस आएगी, बाउंस बैक होगी. तो सिमिलरली जो आपकी लाइट है ना ऐसी बिहेव करती है. जब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है चाहे वो स्मूथ हो या रफ हो तो बाउंस बैक हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. और सरफेस जिसमें लाइट पास नहीं हो सकती आपके बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में जहाँ से आई है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द सरफेस टाइप ऑन विच द लाइट इज स्ट्राइक डिटरमाइन्स द रिफ्लेक्शन टाइप. अ मिरर इज अ वेरी स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट in a regular way. As there is light scattering of the reflected light, the image formed is clearly defined and looks exactly like the object. This type of reflection is called irregular reflection. It is similar to the tennis ball bouncing back of the smooth ball. When you look in a pool of water, you see an image of yourself which is not clearly defined, right? Instead, you look a bit fuzzy and your outline keeps changing. The surface of the water is not smooth.
As a light is reflected from the uneven surface, it is scattered in many directions. A diffuse reflection or irregular reflection is the result. देखिए आपके दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर एंड आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. जैसे कि अगर हम मिरर की बात करें, इसका सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है ना. तो जब लाइट स्कैटर होती है तो आपकी इमेज बनती है. जब आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट की स्कैटरिंग होती है, इमेज बनती है और एग्जैक्टली सेम होती है, राइट. तो ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है. क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, अभी आप कभी भी ना वाटर के पूल में आप अपनी इमेज देखिए, वो थोड़ी सी फजी नज़र आती है, आउटलाइन चेंज होती रहती है, क्योंकि जो वाटर का सरफेस है वो स्मूथ नहीं है. तो जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है वो अनइवन सरफेस से हो रही है, राइट, और बहुत सारी डायरेक्शन में वो स्कैटर हो जा रही है. तो इसीलिए एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपकी बनती है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Incident ray is a ray of light which falls on the mirror surface. Reflected ray is a ray of light which is sent back by the mirror. The point at which the incident ray falls on the mirror is called the point of incidence. Normal is a perpendicular on the face of the surface from the point of incidence. Angle of incidence or angle I is the angle between the incident ray and the normal. Angle of reflection or angle R is the angle between the reflected ray and the normal. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. The incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहले देखिए, इंसिडेंट रे वो होती है जो आपके मिरर सरफेस पे पड़ती है, राइट. सी दिस इज योर मिरर, राइट. अ रे इज कमिंग, right, this is your incident ray or IR, right. अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी. देखिए ये रेस पे पड़ी सरफेस पे, ये आपकी बाउंस बैक होगी. सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ओके, अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर है. दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट. तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, राइट. तो देखिए, और जो इंसिडेंट रे है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सारे ही आपके क्या है? सेम प्लेन पे है. A polished or silver surface, which is the property of reflecting maximum of light, is called a mirror. कोई भी polished या silver surface है जिसकी property होती है कि वो maximum light को reflect कर सके, उसे mirror कहते हैं. Mirrors are the best reflectors. When light falls upon an object, reflection, transmission and absorption, all three take place. Mirror आपके best reflector होते हैं. तो जब भी light पड़ती है किसी object पे, ये reflection, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों ही होते हैं. For best reflection of light, there should be no transmission or absorption of light. A shiny surface helps in reducing absorption. The smoothness of a surface helps in forming a clear image due to regular reflection. The glass offers a smooth surface. Silvering makes it shiny, and red pen or its back prevents transmission and protects the silvering. देखिए, अगर बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चाहिए तो वहाँ पे ना तो ट्रांसमिशन होना चाहिए लाइट का, ना ही एब्जॉर्प्शन होना चाहिए. शाइनी सरफेस जो है वो एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और जो स्मूथनेस होती है सरफेस की, वो क्लियर इमेज बनाने में हेल्प करती है बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब जो ग्लास है उसका स्मूथ सरफेस होता है, अगर आप उसको सिल्वरिंग करते हैं, सिल्वरिंग से वो शाइनी हो जाता है, और उसके जो रेड पेंट होता है उसके बैक में, वो क्या करता है कि वो ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है और सिल्वरिंग को प्रोटेक्ट करता है. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. अ प्लेन मिरर इज अ ग्लास विथ सिल्वर पॉलिश ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स. Any smooth surface that reflects light can act as a plane mirror. Images formed by plane mirror appears to be behind the mirror. However, that this is not possible as a mirror is opaque and no light can pass through it. Figure 12.6 will help you understand how an image is formed in a plane mirror. A plane mirror is placed perpendicular on a white paper and a pin is fixed in its front. The top of the pin O serves as a point
ऑब्जेक्ट। देखिए प्लेन मिरर आपका ग्लास है जिसमें सिल्वर पॉलिश होता है उसकी एक साइड में, तो कोई भी जो स्मूथ सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो एक प्लेन मिरर की तरह वर्क करता है, एक्ट करता है। तो इमेजेस जो आपकी प्लेन मिरर्स में जो अपीयर होंगी दे विल बी बिहाइंड द मिरर, बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मिरर जो आपका ओपेक है तो लाइट तो वहाँ पहुँच नहीं सकती। अब देखिए इसको हमें एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक प्लेन मिरर जो है उसको प्लेस किया गया परपेंडिकुलर एक वाइट शीट पे एंड पिन को फिक्स करना है उसके फ्रंट पे। तो आपका जो टॉप होगा पिन ओ का वो आपका क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट विल सर्व एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो योर इज योर पिन O. Okay. Observe the image of the pin in the mirror and fix two pins A and B such that these and the image lie along the same straight line. अब आपने इस पिन की इमेज को ऑब्जर्व करना है मिरर में और दो पिन्स को फिक्स करना है A और B, ठीक है, और इस तरह से कि जो इमेज है वो सेम स्ट्रेट लाइन में आपके लाई करे। नाउ लुक फ्रॉम सम अदर डायरेक्शन एंड फिक्स टू मोर पिन्स। अब आपने दूसरी डायरेक्शन से देखना है और दो और पिन्स को आपने फिक्स करना है C and D such that these and the image of the pin O are along a straight line, again straight line में। Now remove the mirror and the pins, join points A and B by one line and C and D by another and extend both the line towards a mirror M1 M2. They meet the mirror at P and Q. On further extending the lines, they intersect each other at the point OI. Join OP, OQ and OI. अच्छा इसके बाद क्या करना है, अपने मिरर को रिमूव करना है और पिन्स को भी। आपने पॉइंट्स को ज्वाइन करना है A एंड B एक लाइन से, C एंड D दूसरी से, एंड दोनों ही लाइंस को एक्सटेंड करना है मिरर की तरफ M1 एंड M2। तो वो आपके कहाँ पे मीट करेंगे, P एंड Q पे। अब फर्दर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करोगे इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को एट द पॉइंट ऑफ OI। अब ज्वाइन करना है OP, OQ एंड OI। फ्रॉम पॉइंट O rays of light travels in all directions. The diagram shows only two rays marked OP and OQ, which enter the eye after reflection from the mirror. The reflected rays AB and CD appears to come from the point I behind the mirror. I is called the image of the point O. The image appears to be inside the mirror and cannot be obtained on a screen placed anywhere behind the mirror. Such an image is called a virtual image. The image which can be obtained on the screen is called real image. Line OI is perpendicular to M1, M2 at R. On measuring, we find that OR is equals to IR. That is the image I of object O appears as far behind the mirror as O is in front of it. अच्छा, अब क्या करना है, देखिए O पॉइंट से जो रेज है ना लाइट की वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो डायग्राम क्या कर रहा है, दो रेज को शो कर रहा है OP एंड OQ को, जो कि हमारी आई तक पहुंच रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो मिरर से हो रहा है। जो रिफ्लेक्टेड रेज है ए बी एंड सी डी वो ऐसा लग रहा है कि वो एक पॉइंट से आ रहे हैं, पॉइंट आई बिहाइंड द मिरर। तो आई क्या है, इमेज है किसकी, पॉइंट ओ की। तो ये इमेज जो है आपकी मिरर के अंदर है, उसे हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो ऐसी इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। और जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल इमेज। तो लाइन ओ आई जो है वो परपेंडिकुलर है M1 M2 के आर पे। तो जब हम मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओ आर जो है आई आर के इक्वल है, यानी कि जो इमेज आई है ना ऑब्जेक्ट की, इमेज आई ऑफ ऑब्जेक्ट ओ वो अपीयर हो रहा है एज बिहाइंड द मिरर एज ओ इज इन फ्रंट ऑफ इट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। When we see our image in a plane mirror, we find it of the same size. The image is also erect. It means our top does not become bottom in the mirror, but we find that our left appears right and the right appears left in the mirror. This phenomenon is called lateral inversion. We therefore say that the image formed by a plane mirror is laterally inverted. For example, if we move out our left hand, the image appears to move its right hand. All objects undergo through a lateral inversion in a plane mirror. देखिए, जब भी कभी आप प्लेन मिरर पे अपनी इमेज देखते हो तो आपको वो इरेक्ट नज़र आती है, सेम साइज़ की नज़र आती है ना। बट क्या होता है कि अगर आप अपना वहाँ पे राइट हैंड उठाते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि हमने लेफ्ट हैंड उठाया, और अगर आप लेफ्ट उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये राइट है। तो दिस इज़ कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, यानी कि जो इमेज प्लेन मिरर पे बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। Thus, we see that the image formed by a plane mirror has the following characteristics. Number one, the image is virtual, means we cannot obtain image on screen.
It appears to be as far back inside the mirror as the object is in front of it. It is of the same size as the object. It is erect but laterally inverted. So ये सारे आपके characteristics हैं जो आपने experiment के through भी समझे. Okay, आपकी image plane mirror पे जो है erect तो होती है but it is laterally inverted. 12.2 Applications of plane mirror. We know the major uses of plane mirror is to see reflection of objects. We use mirrors almost in every place where there is a need to look for what is behind. Plane mirrors are used because of their property of reflection. Number 1 as a looking glass, number 2 in periscopes, and number 3 in kaleidoscopes. तो देखिए आप मिरर को यूज़ करते हैं. मेजर यूज जो है प्लेन मिरर का वो क्या है? टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना. अगर हम अपने घरों में सलोन्स में आपके मिरर्स यूज़ होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए प्लेन मिरर्स को यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? एज अ लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप एंड क्लेडियोस्कोप में. द periscopes are used in submarines. Cut slits at 45-degree angle in both sides of a cardboard box. Push a small mirror through each of the slits from side to side. The reflecting side of a mirror must face the reflecting side of the other. Cut peepholes opposite the reflecting sides of the two mirrors. Cover the end of the box with black plastic paper with rubber bands and tape. देखिए पेरिस्कोप्स को ना सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है. आपने कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, उसमें एक स्लिट कट करना है 45 डिग्री एंगल पे बोथ साइड्स में आपके जो कार्डबोर्ड बॉक्स है. फिर आपने एक स्मॉल मिरर को पुश करना है हर स्लिट्स में साइड टू साइड. जो रिफ्लेक्टिंग साइड है एक मिरर का वो दूसरे की रिफ्लेक्टिंग साइड को ज़रूर उसको क्या करना है? फेस करेगा. ओके, पीप होल्स आपने कट करने हैं रिफ्लेक्टिंग साइड के ऑपोजिट में, जो दो मिरर्स हैं उनके ऑपोजिट साइड में. फिर जो कवर आपने करना है एंड ऑफ द बॉक्स एक ब्लैक प्लास्टिक पेपर से, रबर बैंड और टेप की हेल्प से. राइट. वर्किंग ऑफ अ पेरिस्कोप. वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेरिस्कोप. द मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. द अपर मिरर मेक्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द इमेज सर्व्स एज अ mirror object for lower mirror, so that is the image formed by which is seen by the eye. Periscope is used to view objects that are obstructed from the field of view. It is used by the captain of a submarine or by the commander of a tank. It enables the submarine captain to observe objects above the surface of water and the tank commander to observe the movement of the enemy without coming in the open. We can also see through it above an obstacle. तो देखिए अब आप क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं पेरिस्कोप के बॉटम से. तो मिरर जो मिरर्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है. तो अपर मिरर जो है वो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, और जो इमेज है वो सर्व करती एज अ मिरर लोअर मिरर के लिए. ठीक है, तो जो इमेज बन रही है ताकि उसे हम देख सकें. तो पेरिस्कोप को यूज़ किया जाता है उन चीज़ों को व्यू करने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्टेड होती है फ्रॉम द फील्ड ऑफ व्यू. तो जैसे कि जो सबमरीन का जो कैप्टन है वो इसे यूज़ करता है, या फिर जो कमांडर होता है टैंक का वो इसे यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है कि सबमरीन जो कैप्टन है उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं जो वाटर के सरफेस के ऊपर है, और जो टैंक कमांडर होता है वो एनिमी की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर पाते हैं बिना ओपन में आए. ठीक है. द क्लेडियोस्कोप. इट इज़ मेड बाय जॉइनिंग 3 mirror stripes to form a triangle. Between the stripes, a few colored glass pieces held between a translucent bottom and a transparent glass plate. The whole arrangement is kept in a cardboard tube with a hole to watch at the other end. It is used as a toy for children. On looking and rotating the kaleidoscope tube, we see very beautiful colored patterns changing all the time. These patterns are formed due to multiple reflection of light from the 3 mirrors. देखिए क्लेडियोस्कोप आपका बनता है, इसमें 3 आपके मिरर की स्ट्राइप्स होती है जो एक ट्रायंगल बनाते हैं, और फिर इन स्ट्राइप्स के बीच में डाले जाते हैं कुछ कलर्ड पीसेस ग्लास के, कांच के. ओके. तो जो पूरा अरेंजमेंट है इसको एक कार्डबोर्ड ट्यूब में रखा जाता है. इसमें एक होल होता है जिससे दूसरे एंड से आप देख सकते हैं, और एक मतलब ये टॉय की तरह काम करता है फॉर चिल्ड्रन. और जब आप क्लेडियोस्कोप ट्यूब को रोटेट करेंगे ना हर बार, तो आपको हर बार एक ना ब्यूटीफुल पैटर्न्स नजर आएगा. और ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का 3 मिरर से. राइट. 12.3 स्फेरिकल मिरर्स. The mirrors which are made by silvering a part of a hollow spheres are called spherical mirrors. अभी तक हमने प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा. स्फेरिकल मिरर्स आपके क्या होते हैं? ये आपके बने होते हैं जो हॉलो स्फेयर होता है ना उसके एक पार्ट को सिल्वर करके. दे आर
Not flat like plane mirror but curved. The outer surface of a segment of hollow sphere is convex while the inner surface concave. The name of mirror indicates its reflecting surface, convex or concave. अच्छा, अब ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना आपके कर्व्ड होते हैं, जैसे प्लेन मिरर आपका फ्लैट होता है ना वैसे ही होते हैं, कर्व्ड होते हैं. तो जो आउटर सरफेस होता है ऑफ अ सेगमेंट ऑफ हॉलो स्फेयर वो आपका कन्वेक्स होता है, जबकि इनर सरफेस आपका कनकेव होता है. कनकेव मिरर. A mirror can be curved instead of flat. If the mirror surface curves inward, the mirror is called a concave mirror. Most images formed by concave mirrors are inverted or upside down. You can experiment with a concave mirror by looking at the inner surface of a shiny metal spoon. Move it back and forth and observe what happens to your image. देखिए आपका जो मिरर सरफेस है अगर वो इनवर्ट कर्व है तो मिरर आपका कनकेव मिरर होता है. तो ज़्यादा जो इमेजेस बनती है ना कनकेव मिरर्स में वो बनती है आपकी इन्वर्टेड यानी कि अपसाइड डाउन. तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं, जैसे कि आपका जो स्पून है शाइनी मेटल स्पून है उसके इनर सरफेस पे आप अपने आप को देखिए, फिर उसको आप आगे और पीछे लेके आएंगे तो आपको इमेज देखने को मिलेगी. किस तरह से होगी वो आप ऑब्जर्व कीजिएगा. नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर. If you turn the spoon over, you will notice that the reflecting surface curves outward. A convex mirror has a reflecting surface that curves out like the surface of a ball. Reflected rays spread out from the surface of a convex mirror. The image formed by a convex mirror is always right-sided up and smaller than the object. अब आपने inner side जब आपने spoon का देखा तो वो concave mirror था. अब आप उसको turn कर देंगे spoon over को तो आप देखेंगे जो reflecting surface है वो outward curve हो गया, right? तो कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउट होता है जैसे कि बॉल का सरफेस होता है, राइट? तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो स्प्रेड आउट हो जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. तो इमेज जो बनती है कॉन्वेक्स मिरर की वो हमेशा राइट साइड अप होती है बट वो स्मॉलर होती है ऑब्जेक्ट से. पोल ऑफ द मिरर. द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी. फिगर 12.13. अच्छा, जो मिड पॉइंट होगा ना स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर उसे कहते हैं पोल और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर पी से. सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. जो सेंटर होता है हॉलो स्फेयर जिसमें आपका जो मिरर पार्ट होता है जिसका उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से. ओके. Radius of curvature. The radius of the hollow sphere of which the mirror is a part is called the radius of curvature. It is denoted by r. अब जो hollow sphere का जो radius होता है वो आपका radius of curvature है, उसको represent किया जाता है r से. Okay. Principal axis. The straight line joining the center of curvature and the pole of a spherical mirror extended on both sides is called principal axis. देखिए जो straight line है जो center of curvature को join कर रही है और पोल जो आपका स्फेरिकल मिरर का जो आपके बोथ साइड में एक्सटेंड हो रहा है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस. अ पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच रेज पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर. देखिए आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होगा जिसमें आपकी जो लाइट रेज है वो पैरेलल होती है आपके टू द एक्सिस, वो कन्वर्ज हो जाएंगी जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी. तो दैट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर. A point on the principal axis from which light rays travel to the axis appear to diverge after reflecting from the mirror is called the focus of the convex mirror. अच्छा, अब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे लाइट रेज आपकी पैरेलल हो जाएंगी एक्सिस के और हमें ऐसा लगेगा कि वो डाइवर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, तो वो होगा फोकस कॉन्वेक्स मिरर का. अ कनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस while a convex mirror has a virtual one. Remember that, okay? Focal length. The distance between the pole and the focus of a spherical mirror is called its focal length. It is usually denoted by letter F. Focal length is always half of the radius of curvature. अब पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है. इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं स्मॉल एफ से. और जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा हाफ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का. सो एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2. 12.4 Formation of image by a concave mirror. The images in spherical mirrors are also formed following the same laws of reflection as in plane mirrors. The angle of incidence is equal to the angle of reflection in both the cases.
In spherical mirrors, normal at any point of the reflecting surface is obtained by joining it with the center of curvature. Following the laws of reflection and the spherical nature of the mirrors, reflected rays adopt three ways. These are also three rules of making images in a spherical mirror. देखिए, जो आपकी इमेजेस बनती है ना स्फेरिकल मिरर की, वो आपकी सेम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसको फॉलो करके बनती है जो आपकी प्लेन मिरर के लॉज से. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होगा बोथ केसेस में. स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है, जो नॉर्मल होता है ना एट एनी पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, जब हम ज्वाइन कर दें उसको विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखिए 3 रूल्स हैं फॉर मेकिंग इमेजेस in a spherical mirror. Number 1, an incident ray parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. Figure 12.15a. देखिए, this is your incident ray, okay, which is parallel to the principal. ये आपका principal axis है, ये आपका incident ray है, okay, और reflection के बाद ये कहाँ से पास कर रही है, ये incident ray. See, this is your principal focus, okay. दिस इज योर मिरर, ओके. अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, एक इंसिडेंट रे आई इसके पैरेलल, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से अभी आपके कहाँ से क्रॉस करेगी, आपके फोकस से. दिस इज योर फोकस, ओके, एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे. तो ये पहला रो है. नंबर 2, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस. अब देखिए ऑपोजिट होगा, आपकी जो इंसिडेंट रे है ना, ये कहाँ से पास कर रही है, दिस इज पासिंग थ्रू द फोकस. तो जब ये यहाँ पर जाएगी आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे. तो ये रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल हो जाएगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे. नंबर 3, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन retraces its path in the opposite direction. Here angle of incidence is 0, therefore angle of refraction will also be 0. अच्छा देखिए, अगर आपकी रे जो है वो पास हो रही है थ्रू, देखिए थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये रिट्रेस करेगी आपकी पाथ आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा. एनी 2 ऑफ द अबव रेज आर ड्रॉन टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. तो आप ये जो दे रखी है ना, कोई भी 2 इसमें रेज हम बना सकते हैं किसी भी इमेज की पोजीशन को फाइंड करने के लिए, ओके. तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं. Nature of image in a concave mirror. The image of an object formed by a plane mirror is virtual. It cannot be obtained or projected on a screen. That is because it is not focused into a region or a point. But concave mirror produces an image and focuses it. This image is thus real and can be captured on a screen. Plane mirror पे जो image बनती है that is virtual, क्योंकि उसे हम screen पे ना तो obtain कर सकते हैं ना project कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फोकस्ड नहीं होता किसी पॉइंट पे, बट कनकेव मिरर एक इमेज बनाता है एंड फोकसेस इट. तो ये इमेज आपकी रियल होती है और उसको हम स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है. पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज इन अ कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अच्छा देखिए, ये डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, डिफरेंट पोजीशन, साइड्स एंड जो नेचर है ना इमेज का वो दिया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के लिए. तो चलिए इसको सम अप किया गया है एक टेबल में, देखते हैं. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे नंबर 1, ठीक है. तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, और वो इमेज कैसी होगी, स्मॉलर, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ओके. देखिए कनकेव मिरर में आपके इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा आपकी रियल होती है. नेक्स्ट है आपका, अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी या बियॉन्ड सी, तो आपकी पोजीशन जो होगी, इमेज बनेगी आपकी सी एंड एफ के बीच में, ओके, एंड इमेज होगी स्मॉलर, रियल एंड इन्वर्टेड, उसका नेचर होगा. नंबर 3 है आपका, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज आपकी सी पे ही बनेगी, और अगर देखिए साइज अब क्या होगा, अब इक्वल होगा, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. नंबर 4, अगर ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में है तो आपका इमेज बनेगी सी से आगे, बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी बनेगा तो एनलार्ज होगी, बट ये रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर होगा. नेक्स्ट है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी पे बनेगी तो ऑब्वियसली वो एनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होगा. अब नंबर 6 है, जब फोकस और पोल के बीच में होगा, यानी एफ और पीच के बीच में होगा, तो क्या होगा, इमेज आपकी बनेगी बिहाइंड द मिरर
एंड इमेज बनेगी एनलार्ज. एंड रिमेंबर दैट बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बनती है तो वो कैसी होती है? इरेक्ट बट वर्चुअल. रिमेंबर दैट. सिर्फ एक केस में होगा कि वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना, वर्चुअल इमेज होगी तो आपकी इरेक्ट होगी. बाकी केसेस में क्या होगा कि इमेज जो बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी. 12.5 फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. Nature of image in a convex mirror. The incident ray AQ parallel to the principal axis is reflected such that it appears to come from focus F. The incident ray AN toward the center of curvature being normal to the mirror is reflected back along the same path. The two rays appear to diverge from a common point which is the image of point A. This image is formed for the object AO. This image is always smaller than the object. देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट रे है. दिस इज द इंसिडेंट रे AQ जो प्रिंसिपल एक्सिस के आपके पैरेलल है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई, और ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है. ओके तो जो इंसिडेंट रे AN है वो कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मिरर के नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी और सेम पाथ पे जाएगी. तो जो दो रेज है वो ऐसा अपीयर हो रहा है कि डाइवर्स हो रहे कॉमन पॉइंट से, जो कि पॉइंट ए की क्या है, इमेज. ओके अब ये जो इमेज बनी है AO वो क्या है आपका, ये इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के स्मॉलर होगी, राइट. The image formed by a convex mirror is always virtual, erect and smaller than the object. It is formed between the pole and the focus. As the object is moved away from the mirror, the image goes on becoming smaller and moves closer to the focus. When the object is at infinity, then the image is formed at the focus. कभी भी जब इमेज बनेगी ना किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में, वो हमेशा वर्चुअल होगी, वर्चुअल हो तो इरेक्ट होगी और स्मॉलर होगी देन द ऑब्जेक्ट, है ना. और ये बनेगी पोल और फोकस के बीच में. जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे अवे फ्रॉम द मिरर, इमेज जो है वो छोटी छोटी होती जाएगी और वो फोकस के क्लोजर होती जाएगी. और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो है वो बनेगी फोकस पे. 12.6 रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. द डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस इन केस ऑफ मिरर आर गिवन इन द टेबल. चलिए इस टेबल में देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस. रियल इमेज. Real image is formed by the actual intersection of the light rays. Virtual image is formed when rays appear to meet each other in the reverse direction but not actually. देखिए रियल इमेज जो बनती है ना वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है ऑफ द लाइट रेज. वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब रेज हमें ऐसा लगता है कि वो अपीयर हो रही है टू मीट ईच अदर रिवर्स डायरेक्शन बट एक्चुअली होती नहीं है. रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. देखिए रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है बट वर्चुअल इमेज को नहीं किया जा सकता. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है जबकि वर्चुअल इमेजेस हमेशा ही आपके इरेक्ट होती है. रियल इमेज इट्स पोजीशन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल इमेज इट्स पोजीशन इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर. अब देखिए रियल इमेज की पोजीशन की बात करें तो मिरर के सेम साइड होगी एज ऑब्जेक्ट, जबकि वर्चुअल इमेज में पोजीशन हमेशा बिहाइंड द मिरर होगी. Real image, its size varies from smaller to bigger than the object depending upon the position of the object. Virtual image, its size is smaller, larger or equal depending upon the mirror being convex, concave or plane. अच्छा रियल इमेज जो है ना उनका साइज वेरी करता है स्मॉलर से बिगर में. ओके तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, जबकि वर्चुअल इमेज में साइज स्मॉलर या लार्जर होगा या इक्वल होगा, वो डिपेंड करेगा करता है कि कौन सा मिरर यूज किया गया है, वेदर कॉन्वेक्स, कॉन्केव और प्लेन. 12.7 आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स. We can identify a mirror without touching its surface, whether it is plane, concave or convex. We hold the given mirror in one hand near our face and see the image. If the image is erect, of same size and does not change in size by moving away the mirror is plane. If the image is erect, larger and becomes inverted on moving the mirror away from the face, the mirror is concave. If the image is erect and smaller and remains erect on moving the mirror away from the face, the mirror is convex. देखिए हम किसी भी मिरर को बिना उसको टच किए, उसके सरफेस को टच किए, हम बता सकते हैं कि प्लेन है, कनकेव है, कन्वेक्स. कैसे? देखिए आप एक मिरर को होल्ड कीजिए. अब आप देखिए कि अगर इमेज इरेक्ट है
सेम साइज की है और अपना साइज चेंज नहीं कर रही, मतलब आप मिरर को आगे पीछे कर रहे हैं बट वो साइज चेंज नहीं हो रहा है इमेज का, दैट मीन्स मिरर आपका क्या है, प्लेन। अगर इमेज आपकी इरेक्ट है, लार्जर है और इन्वर्टेड हो जाती है, अपसाइड डाउन हो जाती है जैसे ही आप मिरर को फेस से दूर करेंगे, दैट मीन्स मिरर आपका क्या है, कनकेव। और अगर आपकी इमेज इरेक्ट है, स्मॉलर है और इरेक्ट ही रहती है, अगर आप मिरर को अपने फेस से दूर लेके जाते हैं, दैट मीन्स मिरर आपका क्या है, कन्वेक्स। ओके सर, रिमेंबर दैट। देखिए प्लेन मिरर के बारे में तो आपको ही पता ही है, ये कुछ कंडीशंस है कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। 12.8 uses of spherical mirrors. Concave mirrors are used in automobiles and railway engines, headlights, searchlights, and even torchlights, including doctor's head mirror, to give a parallel beam of light. As showing mirrors, larger image of the face, in reflecting telescope to gather light from the space, in solar cookers for conversing the sun's rays. अब कनकेव मिरर्स को ऑटोमोबाइल्स और रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता है हेडलाइट से। अच्छा, आपने डॉक्टर्स की जो हेड मिरर देखे उसमें भी यही होता है, शोइंग मिरर जिससे कि फेस की लार्जर इमेज हो, और आपके टेलीस्कोप में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जिससे कि जो लाइट को गैदर किया जा सके स्पेस से, सोलर कुकर्स में ताकि सन की रेस को कन्वर्स किया जा सके। Convex mirrors are used in rear back view mirrors in automobiles to give a wider field of view. It give an image much smaller than the object. Number 2, in stores, shop to provide security guards with a wide view of the shopping area. Combinations of concave and convex mirrors are used to produce distorted and funny looking images of the visiting persons in fairs and exhibitions. देखिए कॉन्वेक्स मिरर को ना आपके रियर व्यू मिरर्स में यूज़ किया जाता है। आपके जो व्हीकल्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स होते हैं, इससे क्या होता है कि छोटी इमेज बना देता है और एक लार्ज आपका एरिया प्रोवाइड करता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, राइट। स्टोर्स में या शॉप्स में यूज़ किया जाता है जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड को एक वाइड व्यू मिल सके शॉपिंग एरिया में। और कई बार ना दोनों के कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जाता है कुछ डिस्टॉर्टेड या फनी लुकिंग इमेजेस बनाने के लिए, जैसे कि अगर आप कभी फेयर्स या एग्जीबिशंस में गए तो वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। 12.9 lenses. Have you ever used a magnifying glass, a camera or a microscope? If so, you were using a lens to form an image. A lens is any transparent material that refracts light. The light is said to be focused through the lens. Most lenses are made of glass or plastic and have either one or two curved surfaces. As the light rays passes through the lens, they are refracted so that they either come together और स्प्रेड आउट। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया होगा या कैमरा या फिर माइक्रोस्कोप, है ना। तो अगर आपने ऐसे किया तो एक्चुअल में लेंस होते हैं जो इमेज बनाते हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, ओके, नॉट रिफ्लेक्ट बट रिफ्रैक्ट। तो लाइट को हम कहते हैं कि फोकस्ड है थ्रू द लेंस। ज़्यादातर लेंसेज जो आपके ना ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं तो उनके या तो एक या दोनों सर्फेसेस, आप या तो एक सर्फेस कर्व्ड होगा या दोनों होंगे। तो जब लाइट रेज पास होते हैं लेंस के थ्रू तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है जिससे कि या तो वो साथ आ सके या फिर वो स्प्रेड आउट हो सके। टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, कन्वेक्स एंड कनकेव। Convex lenses are thicker in the middle and thinner at the edges. Concave lenses are thinner in the middle and thicker at the edges. तो देखिए दो तरह के आपके lenses होते हैं जो है आपके convex and concave. Number 1 is convex lens. Figure 12.20 shows a lens that is thicker at the center than at the edges. The rays of light are bent toward the center, the thickest part of the lens. The light rays come together or converge. This type of lens is called a convex lens. A convex lens can form different types of images when used in different instruments. Sometimes the image is upside down and smaller, as in camera or the lens of your eye. The image formed by the lens in a microscope or a slide projector is also upside down, but it is larger than the object. Finally, a convex lens can form an image that is right side up and enlarged, as in a magnifying glass or binoculars. देखिए आपके convex lens कैसे होते हैं? देखिए आपके ये मिडल में थिक होते हैं और एजेस में आपके क्या होते हैं, पतले होते हैं, है ना। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो रेज होती है ना लाइट की वो बेंड होती है सेंटर की तरफ, यानी जो थिकेस्ट पार्ट होता है आपके लेंस का। तो लाइट रेज जो है आपकी आती हैं या साथ में आती हैं कन्वर्ज हो जाती हैं, राइट।
तो कॉन्वेक्स लेंस आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बनता है जब उनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। कई बार अपसाइड डाउन होती है इमेज और स्मॉलर होती है, जैसे कि कैमरा या लेंस जो हमारी आई में होता है। और कई बार जो इमेज होती है जैसे कि माइक्रोस्कोप पे या साइड प्रोजेक्टर में वो अपसाइड डाउन होती है, बट ये ऑब्जेक्ट से लार्जर होती है। और आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इमेज बनाता है जो राइट साइड अप होती है और एनलार्ज होती है, जैसे कि आपके मैग्नीफाइंग ग्लास और आपके बाइनोक्यूलर्स में। कनकेव लेंस, a lens that is thicker at the edges and thinner in the center bends light so that it spreads out or diverges. This type of lens is called a concave lens. See figure 12.21. All images produced by concave lenses are right side up and smaller than the object. Such lenses are most often used along with convex lenses to help form a sharper image. अच्छा देखिए, concave lens आपके कैसे होते हैं? ये आपके एजेस में तो थिकर होते हैं बट मिडिल में ये थिनर होते हैं, राइट? जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एजेस में थिकर है, थिनर होते हैं सेंटर में, तो ये लाइट को बेंड करते हैं जिससे कि ये स्प्रेड आउट हो सके या डाइवर्स हो सके। तो जितनी भी इमेजेस प्रोड्यूस होती है कनकेव लेंस में वो राइट साइड अप होती हैं और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती हैं। तो इन लेंसेज को ना ऑफन यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंसेज के साथ, जिससे कि एक शार्प इमेज मिल सके। टर्म्स रिलेटेड विद लेंसेज। नंबर 1, center of curvature. The centers of the intersection of spheres which form the lens surfaces are called the centers of curvature of the lens. C1 and C2 are the centers of curvature. देखिए जो सेंटर ऑफ ये जो सेंटर्स है ना इंटरसेक्शन ऑफ स्फेयर्स जो आपका लेंस सरफेस को बनाते हैं, ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे कि आपका C1 एंड C2। ओके, नंबर 2, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आपका जैसे ये लेंस है और ये आपकी जो लाइन जा रही है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, optical center. It is a point on the principal axis of the lens through which a ray of light passes without bending. If the radii of the intersecting sphere which forms the lens are equal, then the middle point of the lens is called optical center. In figure 12.22 and 12.23, O is the optical center. Now, what is the optical center? देखिए, आपका लेंस है, this is your optical center. It is denoted by O, right? अब इसमें क्या होता है, ये आपका पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में ऑफ द लेंस, जिसमें जो रे ऑफ लाइट है वो बिना बेंड हुए आपकी पास हो जाती है। ओके, एंड जो रेडियाई होगा इंटरसेक्टिंग स्फेयर का, वो क्या बनाता है, ये लेंस बनाता है जो इक्वल होते हैं। देन द मिडिल पॉइंट ऑफ द अर्थ लेंथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 4, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 5, फोकस, द पॉइंट वेयर अ बंच ऑफ पैरेलल रेज मीट ऑन द other side of the lens is called the focal point or focus of a convex lens. Figure 12.24a. The point from where the rays appear to diverge after refraction through the lens is called the focal point or focus of a convex lens. देखिए, अब आपका ये आपके पास फिगर है 12.24a एंड दिस इज बी। इसमें क्या है आपका, ये आपका फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का और ये आपका फोकस है किसका, कनकेव लेंस का। इसमें देखिए आपकी जो रेज है वो क्या हो रही है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में आपकी क्या हो रही है, वो कन्वर्ज हो रही है, राइट? जबकि कनकेव में आपकी क्या हो रही है, जो रेज है वो डाइवर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। नंबर 7, रियल इमेज। When two or more rays starting from a point on the object after refraction through the lens actually meet at a point on the other side, the image formed is called a real image. A real image is always inverted and can be obtained on the screen. देखिए, जब दो या ज़्यादा जो रेज है आपकी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, ये एक्चुअली मीट करेंगी एक पॉइंट पे दूसरे साइड पे, तो इमेज बनेगा होगा रियल इमेज। और रियल इमेज आपको पता है इन्वर्टेड होती है और उनको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं।
8. Virtual image. When two or more rays starting from a point of the object after refraction through a lens do not actually meet but appear to come from a point on the same side of the object, a virtual image is formed. A virtual image is always erect and cannot be obtained on a screen. जब दो या दो से ज़्यादा रेस एक पॉइंट से आ रही हैं, रिफ्रैक्शन होंगी वो लेंस के थ्रू, तो एक्चुअल में वो मिलेंगी नहीं, बट ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट पे मिल रही है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एक वर्चुअल इमेज बनती है. एंड वर्चुअल इमेज आपकी हमेशा इरेक्ट होती है, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. 12.11 Refraction through a prism. A prism is a homogeneous transparent medium such as glass bound by two plane surfaces inclined to each other at an angle. Figure 12.25. The two surfaces ABED and ACFD are called the refracting surfaces, and the angle A between them is called the angle of refracting angle of the prism. The line AD along with the two faces is called the refracting edge of the prism. Any section of the prism cut by a plane at right angles to the refracting edge is called the principal section of the prism. प्रिज्म आपका एक्चुअली एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जैसे कि ग्लास कांच. इसमें दो प्लेन सर्फेसेस से ये बाउंडेड होता है और एक इंक्लाइंड होता है एक दूसरे के एट एन एंगल. तो जो दो सर्फेसेस हैं, जैसे आपको इस फिगर पे नज़र आ रहे हैं, ABED एंड ACFD, ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं. एंड जो आपका एंगल ए है, आपका जो एंगल ए है वो है उनके बीच का, वो आपका क्या है, एंगल या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म. ओके, अब जो लाइन है AD अलॉन्ग विद टू फेसेस, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म. तो कोई भी जो सेक्शन है ना प्रिज्म का आप कट करें बाय अ प्लेन एट राइट एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग एज, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, लेट ABC be the principal section of a glass prism. ABC, okay, principal section of a glass prism. The angle A is a refracting angle of the prism. Let a ray of light PQ be incident on the face AB. This ray is refracted towards a normal NQE and travels in the prism along QR. The refracted ray QR bends away from the normal MRE at AC and emerges along RS into the air. Thus, PQRS is the path of the light by passing through the prism. देखिए, ये जो ABC है आपका, ये प्रिंसिपल सेक्शन हो गया ग्लास प्रिज्म का. एंगल A जो है, दिस एंगल A, ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म है. अब एक मान लीजिए एक रे PQ, रे ऑफ लाइट PQ, ओके, PQ जो है आपकी क्या कर रही है, ये इंसिडेंट हो रही है AB के फेस में. दिस इज AB, ओके. ये जो रे है ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी नॉर्मल के टूवर्ड्स NQE और ट्रैवल करेगी प्रिज्म में अलॉन्ग QR. अब जो रिफ्रैक्टेड रे QR है वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल MRE एट AC और फिर ये इमर्ज करेंगी अलॉन्ग RS इनटू द एयर. तो PQRS ये पाथ है जो आपकी लाइट पास कर रही है इस प्रिज्म के थ्रू. The angle between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation in the case of a prism. Unlike glass slab, the faces where the bending takes place are not parallel to each other on a prism. Therefore, incident ray and emergent ray are not parallel to each other. अब जो एंगल है इंसिडेंट रे और जो एमर्जेंट रे के बीच में, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, D, प्रिज्म के केस में. ओके, तो अनलाइक ग्लास स्लैब जो फेसेस होते हैं ना जहाँ पे बेंडिंग होती है, वो पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के प्रिज्म में. इसीलिए इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी. ठीक है, जैसे कि देखिए ये आपके इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, अगर आप इनको पीछे मीट करेंगे तो एक जगह पे मिल जाएंगे, जबकि पैरेलल रेस कभी नहीं मिलती. दैट मीन्स दीज टू आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. डिस्पर्जन ऑफ लाइट. When a beam of white light is passed through a prism, it splits into colors. If it is allowed to fall on a screen, a band of 7 colors is obtained. This band of 7 colors is called the spectrum. The 7 colors in order are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. The phenomenon of a splitting of white light into 7 colors is called dispersion.
This phenomenon was first observed by Sir Isaac Newton. If we pass this band of light through another inverted prism, the 7 colors again mix to form white light. This shows that white light consists of 7 colors. देखिए, जब एक बीम ऑफ वाइट लाइट को पास हम कराएंगे ना प्रिज्म के थ्रू, तो ये आपके स्प्लिट हो जाएगी कलर्स में. अगर आप इसको स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो 7 कलर्स का आपको बैंड नजर आएगा, जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम. ओके, अब ये जो 7 कलर्स है वो इस ऑर्डर में आपके विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ओके, ये जो फिनोमिनन होता है जिसमें लाइट आपके स्प्लिट हो जाती है, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन. और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सर आइजैक न्यूटन. अगर हम इस बैंड ऑफ लाइट को पास करेंगे किसी इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू, तो जो 7 कलर्स हैं वो फिर से आपके मिक्स होके व्हाइट लाइट बनाएंगे. इसका मतलब व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलके बनी है. Many times you might have seen a rainbow in the sky after a rain shower or in a waterfall with the sun shining behind us. After rainfall, small droplets of water remain suspended in air. These droplets act as tiny prisms, and when sunlight passes through them, it is split into 7 colors to form a rainbow. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. देखिए, कई बार आपने देखा होगा बारिश आती है ना, तो आपको बारिश के बाद रेनबो नज़र आता है स्काई में, और कई बार वाटरफॉल में भी आपको नज़र आता है विद द सन बाइंडिंग बिहाइंड अस, शाइनिंग बिहाइंड अस. रेनफॉल की बात क्या होता है, जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं. तो ये ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और जब सनलाइट में से पास होती है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गए रेनबो बनाते हैं. ओके, और रेनबो हमेशा आपके कहाँ बनता है, ऑपोजिट, जो सन की डायरेक्शन होती है इसके ऑपोजिट. कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. White light is composed of the light of 7 colors. Light rays of different colors travel at different speeds in glass. They therefore deviate through different angles after passing through a prism. देखिए, अब ये डिस्पर्शन क्यों होता है लाइट का. वाइट लाइट आपको पता है 7 कलर्स से मिलके बनी है, तो जो लाइट रेज होती हैं डिफरेंट कलर्स की, वो डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करती हैं ग्लास में. तो इसीलिए जो वो प्रिज्म से पास होती हैं तो वो अलग अलग एंगल से ना डिविएट हो जाती है. Red light is refracted the least, while violet is refracted the most, because red light has the lowest frequency and the violet the highest. Rays of each color therefore emerge along slightly different paths to form a band of distinct colors. Red light की बात करें तो ये सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है, जबकि वायलेट आपकी सबसे ज़्यादा होती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेड लाइट की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और वायलेट की होती है हाईएस्ट. रिमेंबर दैट. तो जो रेज होती हैं हर कलर की, उसीलिए वो एबोज होती है, और स्लाइटली वो आपकी क्या हो जाती है, डिफरेंट पार्ट से वो आपकी एबोज होती है, जिससे कि एक बैंड बनता है डिस्टिंक्ट कलर्स का. If this band of distinct colored light is passed through another inverted prism, each component would deviate back by the same amount and merge to form white light again. In materials of high refractive indices such as diamonds, the rays bend very sharply. Therefore, even a slight movement of the diamond crystal produces a beautiful play of variegated colors. तो देखिए, ये जो बैंड है अलग अलग कलर्ड लाइट का, अगर इसको पास करेंगे एक दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म से, तो हर कंपोनेंट फिर से डिविएट होगा सेम अमाउंट से, फिर वो मर्ज होके बनाएगा वाइट लाइट. अच्छा, और जो मटेरियल जिनकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि डायमंड की बात करें, तो जो रेज है ना बहुत शार्पली बेंड करती हैं. हियर इज अ वे टू शो दैट वाइट लाइट इज made up of the 7 colors of the rainbow. Cut a disc from cardboard and divide it into 7 equal sections. Color each section as shown. Make a small hole in the middle of the disc and push a sharp pencil or stick through it. Spin the disc quickly. What do you see? देखिए, आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप ये शो कर सकते हैं कि वाइट लाइट जो है 7 कलर्स ऑफ रेनबो से बनी. एक डिस्क को आपने कट करना है कार्डबोर्ड से, और उसको 7 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करना है और कलर करना है हर सेक्शन को, जैसे कि इसमें दिखाया गया है. आपके जो रेनबो के 7 कलर्स है ना उसमें, फिर आपने एक स्मॉल होल बनाना है डिस्क के बीच में, एक शार्प पेंसिल को पुश करेंगे या स्टिक को करेंगे. इसके बाद उसको डिस्क को आप स्पिन करेंगे क्विकली, तो आप क्या देखेंगे कि वो 7 कलर्स ना मर्ज होके वाइट आपको नजर आएगा. की पॉइंट्स. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट. Shadows are formed when light is stopped by objects.
Reflection is the bouncing back of light on a surface. For the best reflection of light, there should be no transmission or absorption. A polished or silvered surface which has the property of reflecting maximum of light is called mirror. Plane mirrors have flat surfaces, concave mirrors curve inwards, and convex mirrors curve outward. The angle between the incident ray and the normal is called the angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal is called the angle of reflection. The image formed in a plane mirror is laterally inverted, is of the same size as the object, and appears to be as far in back of the mirror as the object is in front. Such an image is called a virtual image. A concave mirror reflects light rays so that they converge at a point called the focal point. If a light source is placed at the focal point, the reflected rays are all parallel to one another. No image is formed, but a concentrated beam of light is produced. Concave mirrors are therefore placed behind car lights. A convex mirror spreads out reflected light rays from its very large area of reflection. For this reason, they are used in automobiles as side view and rear view mirrors. A lens is any transparent material that refracts light. Lenses are of two types, convex and concave. The white light which we get from the sun is composed of 7 colors. That is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Children, I hope आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.